اے صادقو خداوند میں شادمان رہو، حمد کرنا راست بازوں کو زیبا ہے۔ ستار کے ساتھ خداوند کا شکر کرو، دستار کی برکت کے ساتھ اس کی ستائش کرو۔ اس کے لیے نیا گیت گاؤ، بلند آواز کے ساتھ اچھی طرح بجاؤ، کیونکہ خداوند کا کلام راست ہے اور اس کے سب کام باوفا ہیں۔ وہ صداقت اور انصاف کو پسند کرتا ہے۔ زمین خداوند کی شفقت سے معمور ہے، آسمان خداوند کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا۔ وہ سمندر کا پانی تودے کی مانند جمع کرتا ہے، وہ گہرے سمندروں کو مخزنوں میں رکھتا ہے۔ ساری زمین خداوند سے ڈرے، جہان کے سب باشندے اس کا خوف رکھیں، کیونکہ اس نے فرمایا اور ہو گیا، اس نے حکم دیا اور واقع ہوا۔ خداوند قوموں کی مشورت کو باطل کر دیتا ہے، وہ امتوں کے منصوبوں کو ناچیز بنا دیتا ہے۔ خداوند کی مصلحت اب تک قائم رہے گی اور اس کے دل کے خیال نسل در نسل۔ مبارک ہے وہ قوم جس کا خداوند خدا ہے، اور وہ امت جس کو اس نے اپنی ہی میراث کے لیے برگزیدہ کیا۔ خداوند آسمان پر سے دیکھتا ہے، سب بنی آدم پر اس کی نگاہ ہے۔ اپنی سکونت گاہ سے وہ زمین کے سب باشندوں کو دیکھتا ہے۔ وہی ہے جو ان سب کے دلوں کو بناتا اور ان کے سب کاموں کا خیال رکھتا ہے۔ کسی بادشاہ کو فوج کی کثرت نہ بچائے گی، اور کسی زبردست آدمی کو اس کی بڑی طاقت رہائی نہ دے گی۔ بچ نکلنے کے لیے گھوڑا بیکار ہے، وہ اپنی شہزوری سے کسی کو نہ بچائے گا۔ دیکھو خداوند کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں۔ ہماری جان کو خداوند کی آس ہے، وہی ہماری کمک اور ہماری سپر ہے۔ ہمارا دل اس میں شادمان رہے گا، کیونکہ ہم نے اس کے پاک نام پر توکل کیا ہے۔ اے خداوند، جیسی تجھ پر ہماری آس ہے، ویسی ہی تیری رحمت ہم پر ہو۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قادر مطلق باپ، ہمارے زندہ ازلی اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں آج بھی مقدس دن دیا جس میں ہم اکٹھے مل کر تیری عبادت کر سکیں۔ ہم اس دن کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم لوگ بطور گھرانہ، بطور کلیسیا یہاں پر اکٹھے ہیں تاکہ اس عبادت کے وسیلے سے یسوع کے نام کو جلال مل سکے۔ خداوند، ہم اپنے ایمان کی مضبوطی مانگتے ہیں۔ آج جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو کسی پریشانی، دکھ، پریشانی یا بیماری کے ساتھ یہاں پر ہیں، یا جتنے آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہم میں سے ہر ایک خداوند آج اس عبادت کے وسیلے سے برکت، تسلی، اطمینان اور معجزات پائے۔ خداوند تو ہمیں پاک روح کی معموری دے۔ خداوند تو ہم میں سے ہر ایک کو چھو۔ خدائے پاک روح تمہیں معمور کر، مسا کر، اپنی آگ سے بھر دے، تاکہ آج کی عبادت یسوع کے نام کو جلا دینے کا باعث ہو، ہماری زندگیوں کو بدلنے کا باعث ہو۔ خداوند قواعد کو تیرے پاک روح کی معموری میں اور پاک روح کی رہنمائی میں دیتے ہیں۔ خداوند تو ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت کر، ہمارے ساتھ اور میں برکت دے، تیرا فضل ہمارے لیے ہو۔ اور خداوند تو جتنے لوگ آن لائن شامل ہیں اور جتنے یہاں پر موجود ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے خیال اور ذہن کو تو اپنی طرف لگا دیں۔ خداوند جہاں بھی لوگ تیری عبادت کے لیے جمع ہوں، خداوند تو اپنے لوگوں کو محفوظ رکھ۔ تیرے لوگ بیماریوں سے، لڑائیوں سے، حادثات سے، شر پسند عناصر سے، دہشت گردی سے محفوظ رہیں۔ یسوع کے نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔ Hare Ram Sa
कर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरबा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 18 गाएंगे, ज़बूर नंबर 18। आप भी ऊपरों हाथ में के मैनू रब बचावेगा। मैं
اور اس دعا میں ایلڈر امتیاز ولیم صاحب ہماری رہنمائی کریں گے. ہم خداوند کا شکر کریں گے کہ خداوند نے آج ہمیں موقع دیا کہ ہم اکٹھے ہو سکیں اس جگہ کے لیے. ایف سی کالج کے لیے خدا کا شکر کریں گے اور دعا کریں کہ خداوند ایف سی کالج کو چلانے والے تمام انتظامی افسران، فیکلٹی اور اسٹاف جو یہاں پر کام کرتا انہیں برکت دے تاکہ ان کے وسیلے سے یہ ادارہ ترقی کرے. ہم اپنے ملک کے لیے دعا کریں گے خداوند ہمارے ملک کو ترقی دے، ہمارے ملک کو برکت دے اور ہمارے ملک میں سلامتی کو قائم کرے. اپنے ملک کی 75ویں آزادی کے دن پر ہم اپنے ملک کی سلامتی کے لیے سبھی مل کر دعا کریں گے. ہم اپنے ملک میں امن و سلامتی کے لیے، پوری دنیا میں امن و سلامتی کے لیے دعا کریں گے. آئے ہم دعا کے لیے اپنے سر کو جھکائیں اور ایلڈر امتیاز ولیم صاحب اس دعا میں رہنمائی کریں گے. دعا مانگے. جلال کے بادشاہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں، تو نے ایسا ملک دیا جس میں آزادی سے خدا تیرے نام کو عزت اور جلال دے. خدا کو ہر قسم کی دہشت گردی سے بچا کے رکھنا. اس ملک کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں خدا جو بڑی خدا قربانیوں کے بعد یہ ہمیں حاصل ہوا. اس میں جو خدا جتنے بھی بسنے والے ہیں چاہے کسی بھی نسل کے ہیں، خدا ان کو بڑی برکات سے مالا مال کرتے رہنا، سلامتی بخشنا، صحت تندرستی دینا. آج جب کہ خدا ہم یہ خوشیاں منا رہے ہیں، اس کو خدا 75 سال ہو گئے ہیں، ہماری کئی نسلیں آئیں اور کئی ابھی آنے والی ہیں. خدا تو ان کو بھی برکات سے مالا مال کرتے رہنا، سلامتی بخشنا. اس ملک کو خدا خوب سے خوب تر بنانا، ہر قسم کی دہشت گردی سے، ہر قسم کے معاشی حالات سے خدا تو اس کو سرفراز کرنا. خدا اس ملک کے ساتھ رہنا، ہمارے ساتھ رہنا، ہماری بڑی برکات سے ہمیں مالا مال کرتے رہنا. خاص دعا کرتے ہیں ایف سی کالج کے لیے جو کہ خدا ہمیں تم نے بڑی برکت دی، اچھا ادارہ دیا. خدا اس کے لیے خاص دعا کرتے ہیں اس کی انتظامیہ کو، اس کو چلانے والوں کو بڑی برکات سے مالا مال کر، اوپر سے لے کے خدا نیچے تک انتظامیہ کے ایک ایک کو بڑی برکات سے مالا مال کر. لوگ تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے یہاں کام کرتے ہیں. پیارے ستون کی بھی بڑی باری مدد اور حفاظت کرنا، سلامتی بخشنا. اور پوری کلیسیا کے لیے دعا کرتے ہیں خدا نے اتنی اچھی کلیسیا دی، اس کلیسیا کے لیے بھی دعا کرتے ہیں خدا اس کلیسیا کو بھی سرفراز کرنا. جتنے لوگ یہاں موجود ہیں خدا ایک ایک کو برکت سے نوازنا. جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے خدا ان کے لیے بھی تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ان کو خدا ہر قسم کی برائی سے بچا کے رکھنا، ان کو سلامتی بخشنا. اگر کوئی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہیں آ سکا تو خدا ان کو بھی اتنی ہی برکت دینا. قاضی صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں خدا جو ہمارے لیے گہرے بھید کھولنے والے ہیں. تو پیارے یسوع کی بڑی باری مدد کرنا. تیرے بندہ کے لیے خاص دعا کرتے ہیں، اپنے بندہ کے ساتھ رہنا، بڑی برکات سے مالا مال کرنا، سلامتی بخشنا. قائد کے لیے دعا کرتے ہیں خدا قائد کو بھی بڑی باری برکات سے مالا مال کرنا. آج تیرا پاک سبت دن ہے خدا جہاں جہاں تیرے نام کو لوگ عزت اور جلال دے رہے ہیں، دینے والے ہیں، خدا ان کے ساتھ بھی رہنا، ان کو بڑی برکات سے مالا مال کرنا. ہر قسم کی دہشت گردی سے بچا کے محفوظ رکھنا. لوگ سلامتی سے تیرے گھر میں آئے ہیں، اسی طرح سلامتی سے تیرے گھر سے جائیں. تو ہر ایک کے ساتھ رہنا، بڑی برکات سے مالا مال کرنا. ابھی اس چھوٹی بچی کے لیے دعا کرتے ہیں خدا جو کسی وجہ سے خدا بیمار ہے. تو پیارے یسوع کی بڑی باری مدد کرنا. تو اٹھا کھڑا کرتا ہے، تو معجزے کرتا ہے، تو معجزات کا خداوند ہے. اس بچی کو بڑی باری برکت دینا، اس کے باپ کی پریشانی کو دور کرنا. خداوند اس کو خداوند سلامتی سے اسی طرح آئی ہے، اسی طرح سلامتی سے جائے. ہمارے ساتھ رہنا، بڑی برکات سے مالا مال کرنا. ہر دکھ تکلیف تمام قسم کی پریشانیوں سے بچا کے محفوظ رکھنا. ملک پاکستان میں ملک پاکستان سے باہر خداوند تیرے لوگ رہتے ہیں، اگر کسی وجہ سے ستائے جا رہے ہیں تو خداوند ان کے ساتھ رہنا، ان کو ان کے ایمان میں مضبوط رکھنا تاکہ تیرے لوگ مضبوط ہو جائیں. خداوند اس ملک میں پیار، محبت، غامت بڑھتی رہے. معاشی حالات کے لیے دعا کرتے ہیں، سارے معاشی حالات ٹھیک کرنا. ہر دکھ سے، تمام قسم کی پریشانیوں سے، ہر قسم کی دہشت گردی سے اس ملک کو بچائے رکھنا. سلامتی سے آئے ہیں، اسی طرح سلامتی سے تیرے گھر سے جائیں. یسوع کے قادر نام میں یہ دعا مانگتے ہیں. خداوند کی تعریف میں آگے بڑھتے ہوئے ہم زبور 84 گائیں گے. زبور نمبر 84. خداوندہ تو لشکر آلا خدا ہے. زبور نمبر 84، زبور نمبر 84.
आइंदा अतवार जो है वो अशायरबानी का अतवार है। हमारी जो गुज़श्ता कलीसियाई रवायत है उसके मुताबिक हम महीने के दूसरे अतवार को और आखिरी अतवार को अशायरबानी करते थे, लेकिन अब हमने इसको तब्दील करके आल्टरनेट संडेज़ पे इसका इनकाद करना शुरू किया है। यानी एक अतवार को छोड़कर उससे अगले अतवार में हम शायरबानी किया करेंगे, ताकि हमारी जो तरतीब है जब महीने में 5 अतवार आते हैं तो उसमें ख़राब ना हो। इसलिए अब जब भी हम एक अतवार शायरबानी नहीं करेंगे तो उससे अगले अतवार शायरबानी होगी। खुदावंद के फजल से हम इस शायरबानी को जारी रखेंगे। इसलिए आइंदा अतवार खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए खुद को तैयार करके आएँ, ताकि हम खुदावंद की मेज़ पर इकट्ठे आ सकें और दिली तैयारी के तौर पर खुदावंद के पास हो सकें। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे और क्वायर के साथ आप भी ज़रूर उन गीतों को गाया करें ताकि हम उन्हें कलीसियाई गीत बना सकें।
हदिये के लिए गीत गाने से पहले मैं आपको जो आज हमारा पाकिस्तान का 75वां योम आज़ादी है उसकी मुबारक देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैंने ये ज़रूरी समझा कि हमें इबादत में ज़रूर इसको जहन में रखना चाहिए कि आज हमारा योम आज़ादी है, हमारे मुल्क का योम आज़ादी है। हमारे बुज़ुर्ग और हम सभी यहाँ पर रहते हैं, हमारे बुज़ुर्गों की पैदाइश और हमारी पैदाइश की सरजमीन यही है, इसलिए ये हमारा मुल्क है। बतौर मसीही हम अपने मुल्क के साथ और अपने मुल्क की हुकूमतों के साथ वफादार रहने की तालीम खुदा के कलाम से पाते हैं। इसलिए हमें आज इस योम आज़ादी को खुशी के साथ मनाना चाहिए और खुश होना चाहिए। दोस्तों को, अजीज़ों को, गैर मसीही दोस्तों को, सभी को ज़रूर मुबारकबाद दें और खुश हों, क्योंकि ये हमारा मुल्क है और ये हमारे मुल्क की आज़ादी है। और इसके लिए ज़रूर दुआ करते रहें कि हमारा मुल्क जो है वो बहाली की तरफ जाए और तरक्की करे और इसमें अमन और सलामती हो। इस वक्त हम खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले गीत गाएंगे। गीत नंबर 348 हम सब खड़े होकर खुदावंद की तारीफ में ये गीत गाएंगे। तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा। और जब ये गीत खत्म होगा तो उसके बाद हम खड़े रहेंगे और खुदावंद के कलाम की तलावत जो है वो खड़े रहकर सुनेंगे। गीत नंबर 348, गीत नंबर 348। तेरा
कलाम की तिलावत को सुनेंगे। नए अहद नामे में से मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 31वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्सेस 31 to 38। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 8वां बाब उसकी 31वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस की तिलावत करने में हमारी रहनुमाई मिसेस सारा हारून करेगी। खुदावंद के पाक कलाम में ये लिखा है, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। तू क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम की नस्ल से हो, तो भी मेरे कत्ल की कोशिश में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। मैंने जो अपने बाप के हाथ देखा है वो कहता हूँ, और तुमने जो अपने बाप से सुना है वो करते हो। खुदा की कलाम को पढ़ो। आमीन। तशरीफ रखें। आए हम दुआ करें। खुदा कद्दूस, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम इकट्ठे हो सकें और तेरी इबादत कर सकें। यकीनन खुदावंद तेरा कलाम आज़ादी बख्शता है। खुदावंद हमें तौफीक बख्श दे कि आज तेरे कलाम को सुनने से हम हकीकी आज़ादी को जान सकें। खुदावंद तू हमारी हिफाजत कर। खुदाए पाक रूह, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं, इकरार करते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हमारा इल्म महदूद है, हमारी अकल नाकिस है, हम तेरे कलाम को अपनी इंसानी अकल से नहीं समझ सकते। तेरा पाक रूह हमारी मदद करता है और फिर हम तेरे कलाम के भेद को पाते और उससे बरकत लेते हैं। खुदा तू अपने पाक रूह की मामूली दे, तेरा मसला यहाँ पर हो, ताकि हम सब आज के कलाम से बरकत पाएं, यीशु के नाम में, आमीन। आज हमारे मुल्क में यौम आज़ादी है और हम जो सीरीज कर रहे हैं वो है कलीसिया की खूबियाँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी आज़ादी से मुतालिक है कि जिंदा कलीसिया आज़ाद कलीसिया होती है। जिस तरह हमने गुज़श्ता अतवारों में मुख्तलिफ टॉपिक्स पर सीखा है कि जिंदा कलीसिया सरगर्म कलीसिया है, जिंदा कलीसिया देने वाली कलीसिया है, जिंदा कलीसिया पाक कलीसिया है, जिंदा कलीसिया ईमान में मजबूत कलीसिया है। और इस दफ़ा हम खुदावंद के कलाम में से जब जिस हवाले का मैं तिलावत किया है, जिसकी तिलावत हमने सुनी है, वो ख़ास तौर पर हमें आज़ादी के हवाले से बताती है कि जिंदा कलीसिया की एक खूबी ये है कि जिंदा कलीसिया आज़ाद कलीसिया होती है। लेकिन किस हवाले से आज़ाद होती है वो भी हम देखेंगे। आजकल हर इंसान आज़ाद रहना चाहता है और आज़ादी का मतलब ये है कि जहाँ पर कोई भी शख्स कुछ सोचने के लिए, कुछ कहने के लिए, कुछ करने के लिए अपनी मर्जी से अमल कर सके। यानी आज़ादी वो हालत है जिसमें इंसान अपनी मर्जी से, अपने इरादे से
जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक इस तारीफ को देखें तो आज हम देखेंगे कि ये इस तारीफ को हम किस तरह एक जिंदा कलीसिया अपने अंदर ले सकती है। कि आज़ादी का मतलब तो ये है कि हम अपनी मर्जी से, अपने इरादे से जो सोचते हैं, जो चाहते हैं वो करें। लेकिन खुदा का कलाम जिस आज़ादी की बात करता है और जिंदा कलीसिया को जिस आज़ादी की जरूरत है वो कैसी आज़ादी है। आजकल के दौर में कोई भी इंसान गुलामी नहीं चाहता। घरानों में आपने देखा गुलामी के हवाले से सियासी नारे सुने होंगे। खानदानों में बच्चे बड़े सभी अपने आप को आजाद रखना चाहते हैं। लेकिन आज अगर हम अपने इर्द गिर्द गौर करें तो हम में से कोई भी शख्स मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं है। हम कहीं ना कहीं अपने आप को गुलामी में देखेंगे। मुख्तलिफ हालात में, परेशानियों में, खौफ में, मुख्तलिफ तरीकों से हम जकड़े हुए अपने आप को पाएंगे। लेकिन कलाम मुक़द्दस जिस आज़ादी की बात करता है वो एक मुख्तलिफ माहौल है। पैदाइश की किताब में इंसान की आज़ादी की हालत हमें नजर आती है। पैदाइश की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 27वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक आज़ादी की, ये अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगा तो सोचिए जरा, विजुलाइज कीजिएगा कि कैसी आज़ादी इंसान को खुदा ने दी। पैदाइश की किताब पहला बाब 27 में लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उसको पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो, जमीन को मामूरो महकूम करो, और समंदर की मछलियों, हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। और खुदा ने कहा कि देखो मैं तमाम रुए जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूं, ये तुम्हारे खाने को है। इख्तियार, अथॉरिटी मिलती है। और ये गुलामी से बिल्कुल मुतजाद सूरत है कि जब स्लेवरी हो, गुलामी हो, तो फिर किसी का हमारे ऊपर अख्तियार होता है। लेकिन यहां पर जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो आदम और हवा को जमीन की हर एक चीज पर इख्तियार दिया, रूल करो। लेकिन आज इंसान पर रूल हो रहा है। लेकिन खुदा ने इंसान को इख्तियार दिया और आजाद पैदा किया, आजाद बनाया और कहा कि मैं तमाम रुए जमीन की कुल बीजदार सब्जी, हर दरख्त जिसमें उसकी बीजदार फल है तुमको देता हूं, और ये तुम्हारे खाने को है। अब पैदाइश की किताब के तीसरे बाब में जब जाते हैं तो एक मुख्तलिफ और मुतजाद सूरत नजर आती है। पैदाइश की किताब और उसका तीसरा बाब और उसकी 16वीं आयत। फिर उसने औरत से कहा मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तो दर्द के साथ बच्चे जनेगी, तेरी रगबत अपने शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। ये मुश्किल लगती है बात औरतों के लिए मानना, ये वो तुझ पर हुकूमत करेगा। फिर उसके बाद 17वीं आयत में लिखा है, और आदम ने उससे कहा चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई, मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा, वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कुटारे लगाएगी और तू खेत की सब्जी खाएगा। पहले बाब में लिखा है तमाम रुए जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूं। यहाँ पर लिखा है मुशक्कत के साथ तू उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा, वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कुटारे उगाएगी और तू खेत की सब्जी खाएगा, तो अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में तो फिर लौट ना जाए, इसलिए तो उससे निकाला गया है क्योंकि वो खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। पहले बाब में
आजादी नजर आती है, फ्रीडम, और इंसान रूल कर रहा है, इख्तियार है। तीसरे बाब में नाफरमानी के बाद इंसान पर रूल हो रहा है। औरत को कहा कि मर्द तुझ पर हुकूमत करेगा, मर्द पर मेहनत, मुशक्कत और उसके बाद मौत जो है वो इंसान पर हुकूमत कर रही है। इंसान की जिंदगी में गुलामी है, इंसान गुलाम है स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर हम में से हर एक इंसान, चाहे वो जितनी भी आजाद स्टेट में रहता हो, जहां पर बहुत से राइट्स हैं, आजाद ममलकतें और उसमें आजाद शहरी जो ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास हर एक हकूक जो हमें हर एक हकूक जो है वो हासिल है, वो भी मुकम्मल तौर पर ये क्लेम नहीं कर सकते कि वो आजाद है, क्योंकि इंसान पर और चीजें रूल कर रही हैं, हुकूमत कर रही हैं। और यहां पर आज जो हवाला तिलावत किया गया था उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदियों का जब ये कहा कि सच्चाई से वाकिफ हो गए, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, तो उन्होंने जवाब दिया हम किसी की गुलामी में नहीं रहे। हालांकि जिस वक्त वो ये कह रहे थे उस वक्त भी वो गुलाम थे। कह रहे हैं तू हमें कह रहा है कि हमें आजादी मिलेगी, हम तो गुलाम ही नहीं है। हालांकि वो उस वक्त भी गुलाम थे और अपनी आजादी से ज्यादा साल यहूदियों ने गुलामी में गुजारे। लेकिन उन्होंने यीशु के सामने कहा हम अब्राहम की नस्ल से, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, क्योंकि वो अपने आप को अब्राहम के वसीले से खुदा के लोग समझते थे और वो ये सोचते थे कि क्योंकि हम खुदा के लोग हैं, खुदा ने हमें चुना है, इसलिए हम किसी के गुलाम नहीं हैं। लेकिन दुनियावी तौर पर वो भी गुलाम थे। लेकिन यीशु मसीह उनकी दुनियावी गुलामी की तरफ इशारा नहीं कर रहे, यीशु मसीह उनकी रूहानी गुलामी की तरफ इशारा कर रहे हैं। 34वीं आयत में यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलामी के सबब से इंसान जो है वो खुदा से रिश्ते और ताल्लुक को कायम नहीं कर सकता। और 35 आयत में यीशु का गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, यानी गुलाम का और मालिक का रिश्ता एक नौकर और मालिक का रिश्ता है, वो एक मुख्तलिफ रिश्ता है। लेकिन यहूदी लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन खुदा की नज़र में ये गुलामी थी। खुदा की नज़र में इंसान रूहानी तौर पर गुनाह का गुलाम है। रोमियो के खत में पौलुस रसूल ये कहते हैं कि मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथों बिका हुआ हूं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इंसान क्लेम कर ले कि मैं हर तरह से आज़ाद हूं, इंसान फिर भी आज़ाद नहीं है, क्योंकि इंसान उस हालत में नहीं है जो पैदाइश की किताब के पहले बाब में जब इंसान खुदा की शबीह पर बनाया गया था उस हालत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंसान की असल हालत जो खुदा ने बनाया जिसको, वो पैदाइश की किताब और पहला बाब है। लेकिन जो आज का इंसान है वो जिस्मानी और गुनाह के हाथों बिका हुआ है, गुनाह का गुलाम है, गुनाह इंसान पर हुकूमत कर रहा है। फिर उसके बाद याकूब का खत और उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत को अगर हम देखें तो वहां पर भी इंसान की गुलामी को बयान किया गया है। याकूब का खत और उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, 14वीं आयत में लिखा है, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर फंसकर आजमाया जाता है। हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामिला होकर गुनाह को जन्मती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। सबसे पहले इंसान गुनाह का गुलाम है, बाइबल मुकद्दस कहती है, फिर गुनाह का असर मौत है और मौत इंसान पर हुकूमत कर रही है, मौत का भी इंसान गुलाम है। और खुदावंद यीशु मसीह ने एक और बात यहूदियों को कही 38वीं आयत में, मैंने जो अपने बाप के हाथ देखा वो कहता हूं और तुमने जो अपने बाप से सुना है वो करते हो। यहां पर भी उन्हें यहूदियों को यीशु ने
जिस्मानी होने, दुनवी होने का इशारा दिया कि इंसान इस वक्त खुदा का नहीं बल्कि दुनवी ख्वाहिशों का, इंसानों का गुलाम है। शरीयत इंसान पर हुकूमत कर रही है, गुनाह इंसान पर हुकूमत कर रहा है, मौत इंसान पर हुकूमत कर रही है। यानी इंसान किसी तरह से भी आज़ाद नहीं है। गुनहगार इंसान इब्लीस की कैद में है, इब्लीस की गुलामी है। जब हम किसी शख्स की बात मानते हैं तो हम उसे अपना मालिक तस्लीम करते हैं। अगर हम खुदा के बजाय इब्लीस के मशवरों को, उसकी आजमाइशों को मानते हैं तो इसका मतलब है हम इब्लीस के गुलाम हैं। मैंने 4-5 बातें बताई हैं जिसमें हम गुलामी करते हैं। गुनाह की गुलामी करते हैं, मौत की हम गुलामी में हैं, इसी तरह से हम इब्लीस की गुलामी में हैं, इसी तरह से हम इंसानों की, इंसानी ख्वाहिशों की गुलामी में हैं। लेकिन खुदा हमें इसमें से आज़ाद करना चाहता है। ये हकीकी आज़ादी है जब हम इन 4 बातों में से आज़ाद हो जाएंगे। जब हम गुनाह की गुलामी से, मौत की हुकूमत से, इंसानी ख्वाहिशों की हुकूमत से और इब्लीस की गुलामी से आज़ाद हो जाएं, ये खुदावंद की मर्जी के मुताबिक आज़ादी है। दुनियावी तौर पर तो हम आज़ाद हैं, हम अपने मुल्क की आज़ादी को मना रहे हैं, लेकिन रूहानी आज़ादी के लिए यीशु की इन बातों पर गौर करना ज़रूरी है जो यहाँ पर यूहन्ना की इंजील में लिखी गई। और इसका तरीक़ेकार खुदा ने क्या वज़ा किया कि कैसे इंसान आज़ाद हो। रोमी के खत के 6 बाब में खुदावंद पौलुस रसूल के वसीले से कलाम करते हैं, कहते हैं चुनाचे हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई ताकि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। गुनाह की गुलामी से निकालने के लिए खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया और खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के साथ ईमानदार भी मसलूबियत में से गुजरकर गुनाह की गुलामी से रहाई पाते हैं। और गुनाह की गुलामी से रहाई हमें एक नए रिश्ते में डाल देती है। गलीतियों के खत के पिछले दिनों में हमने मुताला किया था और गलीतियों के खत में हमें शरीयत से आज़ादी के बारे में पता चलता है और खुदा के साथ एक रिश्ते और ताल्लुक में बंध जाने की बात हमें मिलती है। गलीतियों का खत उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत में हम देखते हैं। गलीतियों का खत उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा, चुनाचे अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही अब्राहम के फर्जंद हैं। उसके बाद जब हम 15वीं और 16वीं आयत को देखते हैं और इसका 3 पूरा बाब जो है उसका मुताला करते हैं तो इसमें हमें आज़ादी के बारे में तालीम मिलती है कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमें आज़ाद किया गया है। 26वीं और 29वीं आयत लिखा है। 26वीं आयत लिखा है, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। मैंने पहले कहा था कि जो गुलामी है वो एक मुख्तलिफ ताल्लुक को बयान करती है, लेकिन जब हम आज़ाद हो जाते हैं तो एक मुख्तलिफ रिश्ता और ताल्लुक कायम हो जाता है कि जब हमें खुदा के फर्जंद बना दिया गया है। 29वीं आयत में लिखा है, अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। लेकिन उससे पहले गुलामी की बात की गई है कि इंसान खुदा का गुलाम है, लेकिन यीशु मसीह के वसीले से आज़ादी ये है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। ये हकीकी आज़ादी है कि जब इंसान का खुदा के साथ, जिसने इंसान को बनाया है, उसके साथ एक रिश्ता कायम हो और एक ताल्लुक कायम हो, फर्जंद बनने का रिश्ता, गुलाम का रिश्ता फर्क है। घराने में गुलाम जो होता है उसका रिश्ता मालिक के साथ नौकर और मालिक का है, लेकिन जो मालिक की औलाद है उसका ताल्लुक, उसकी हैसियत, उसका स्टेटस गुलाम से बिल्कुल मुख्तलिफ। वो अपने बाप के करीब है, वो अपने बाप से मांग सकता है, उसका बाप उससे प्यार करता है और उसकी फिक्र करता है। हमें दुनिया में रहते हुए इंसानी सोच और इंसानी फिक्र का पता है कि इंसान अपने बच्चों को किस तरह प्यार करता है और इंसान दूसरों के साथ किस तरह प्यार करता है। जो
जज्बात इंसान के अपने बच्चों के लिए हैं, अपने बेटे और बेटी के लिए हैं, वो जज्बात किसी और के लिए होना बहुत मुश्किल है। इसी तरह आज़ादी यही ताल्लुक को बयान करती है कि जो हकीकी आज़ादी रूहानी तौर पर आज़ादी है, गुनाह की गुलामी से रहाई है, यीशु के साथ हमारी पुरानी इंसानियत मसलूब की गई है, और जो एक नया रिश्ता कायम हुआ है उसमें खुदा और इंसान एक रिश्ते और ताल्लुक में बन गए हैं, और वो आज़ादी की हालत है। जिस तरह से पैदाइश की किताब में खुदा ने आदम और हव्वा के साथ एक ताल्लुक रखा, रफ़ाकत रखी, यीशु के वसीले से हम उस आज़ादी में दाखिल होते हैं। आज़ादी रिश्ता, स्टेटस, हैसियत बदल देती है और हमें खुदा के करीब ले आती है। लेकिन ये आज़ादी, जब हम ये कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, तो हमने देखा होगा कि कलीसियाँ ज़्यादा ही आज़ाद हैं। हमने ये गौर किया हो तो हमें पता लगेगा कि असली वाकई ज़्यादा आज़ाद हो गए। लेकिन मुक़द्दस पतरस इस सोच को एड्रेस करते हैं। हमने पहले भी इस बात को सीखा है कि आज के दौर में कलीसिया जिन मुश्किलात और जिन चैलेंजेस से गुजर रही है, 2000 साल पहले भी ऐसे चैलेंजेस थे। उस वक्त भी कलीसिया ऐसे चैलेंजेस में से गुजर रही थी। आज अगर कलीसिया में झगड़े हैं तो इब्तदाई कलीसिया में भी हमें कुछ मसाइल नजर आते हैं, और थ्रू आउट चर्च हिस्ट्री हमें मसाइल नजर आते हैं। आज अगर अकायद का मसला है और अकायद के मामले में बाज़ औक़ात बिदअत नजर आती हैं, तो आज से कितने सौ साल पहले भी यही सूरत हाल थी। बहुत सी बिदअत थी, बहुत सी सोचें थी। अगर हम मुक़द्दस पतरस के पहले खत को देखें, उसके दूसरे बाब की 16वीं आयत को देखें, तो यहाँ पर लिखा है, अपने आप को आज़ाद जानो। बड़ी अच्छी बात है, अपने आप को आज़ाद जाने, क्योंकि यीशु ने हमें आज़ाद किया है। यीशु के वसीले से मेरा और आपका खुदा के साथ एक रिश्ता है। हम इसके फर्जंद हैं, हम गुलाम नहीं हैं। हमें आज़ाद पैदा किया है, आज़ाद बनाया है, यीशु ने हमें आज़ाद कर दिया है। लेकिन 16वें में लिखा है, मगर इस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ। क्या लिखा है? इस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ। जरा बोलिए जरा थोड़े से, इस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ। ये आज़ादी है कि हमें अब खुदा का कलाम कह रहे कि अपने आप को आज़ाद जानो, लेकिन फिर कहते हैं इस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ। इससे पहले, इन आयात से पहले ईमानदारों को बहुत ही खूबसूरत बातें बताई गई हैं, जिन्हों पढ़ के ऐसी वाकई आज़ाद समझने अपने आप। दूसरे बाब की 9वीं आयत में लिखा है, तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुक़द्दस कौम, ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। ये बातें पढ़े थे, सारा दिल खुश हो जाता है। जी, इतना बड़ा रुतबा कि हम मुक़द्दस कौम हैं, बरगज़ीदा नस्ल हैं, शाही काहिनों का फिरका है, ऐसी उम्मत है जो खास मलकियत है। तो फिर इतने बड़े रुतबे, फिर तो सानू आज़ाद ही रहना चाहिए। लेकिन इन सारे बड़े रुतबे, सारे स्टेटस, हैसियत के बदल जाने के बाद भी, कि जब खुदा ने हमें इतना करीब कर लिया है, इतना अपना मुक़द्दस बेटा और बेटी बना लिया है, अपने लोग बना लिया है, तो ये आज़ादी कहीं बदी का पर्दा न बन जाए। जब खुदा ने हमें बहुत सी बरकतें, खुशियां, तरक्की दी है, तो उस वक्त गुनाह में ज्यादा गिरने का मौका होता है। इसीलिए पतरस ने जब सारी बातें बताई, तो इंसान होते हैं वो जानता है कि इंसान की हालत क्या होती है। जब ईमानदार को इतनी कलीसिया को इतनी बरकतें सुनाई जाएं कि कलीसिया ये है, तो फिर कलीसिया ये ना समझना शुरू कर दे कि हम आज़ाद है। कलीसिया यीशु मसीह में आज़ाद है, लेकिन बदी के हवाले से आज़ाद नहीं है। इसीलिए कहा गया कि आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो। बंदे का लफ्ज़ तो हमने कई दफ़ा पहले भी किया, मैं दोबारा नहीं करूँगा। अहले साहब, आपको याद है बंदे का लफ्ज़? तो बंदे का मतलब क्या है? जो मैंने बताया था
کہ سرونٹ ہے بندے کا مطلب، سرونٹ. اور میں نے چلے میں بتا دیتا ہوں دوبارہ سے کہ ہم کہتے ہیں جو خواتین ہیں یہاں پر وہ اپنے شوہر کو کہتی ہیں میرا بندہ ہے. تو بندے کا مطلب سرونٹ ہے. تو اس لیے جب یہاں پر لکھے بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو. کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو صرف اور صرف خدا کے غلام جانو، اپنے آپ کو آزاد جانو، اپنی آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو. اور جب ہم اپنے آپ کو خدا کے بندے، خدا کے غلام سمجھتے ہیں تو پھر بدی نہیں ہوتی. ایک اور مثال پرانے عہد میں بڑی خوبصورت ہے مقدس یوسف کی. مقدس یوسف غلامی، پھر اس کے بعد سرفرازی، پھر غلامی، قید، پھر سرفرازی، لیکن بدی اس نے کی. یوسف ہمیں پیدائش کی کتاب، اس میں ہم چلے جائیں گے پیدائش کی کتاب کے 36ویں باب میں، تو وہاں پر ہمیں سب سے پہلے نظر آتا ہے کہ اس کو بیچ دیا گیا اسماعیلیوں کے ہاتھوں. 36ویں باب میں پیدائش کی کتاب کے. پھر 38ویں باب میں وہاں سے اسماعیلیوں سے پوتیفار نے اسے خرید لی ہے اور غلام بنا دیا ہے. پہلے بھی بیچا گیا غلامی کے لیے، پھر وہاں سے پوتیفار خرید لیتا ہے، وہ غلام بنا لیتا ہے. لیکن خدا نے اسے اقبال مند کیا اور جس مصری آقا کے گھر میں وہ رہتا تھا خدا نے اس کے گھر کا اسے مختار بنا دیا. ہر چیز اس کے کنٹرول میں. پوتیفار کو فکر ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے گھر میں، کیا کام ہو رہا ہے، لیکن ساری چیزیں جو ہیں وہ سنبھال رہا ہے یوسف. اور پوتیفار کے گھر کو بھی خدا نے برکت دی یوسف کی وجہ سے. پھر اس کے لیے آزمائش آئی. آزمائش پوتیفار کی بیوی کے سبب سے تھی اور اس کا جواب اس نے کیا کہ اس نے اپنے اختیار کو، اس نے اپنی آزادی کو بدی کا پردہ نہیں بنایا. پیدائش کی کتاب اس کا 39واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں. یوسف کہتا ہے پوتیفار کی بیوی کو کہ اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی کیونکہ تو اس کی بیوی ہے. سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گنہگار بنوں. اور اس کے بعد جب اس نے بدی کا پردہ نہیں بنایا، اپنے اختیار کو، اپنی آزادی کو، دوبارہ سے قید میں چلا گیا. قیدی بن گیا دوبارہ سے، لیکن خدا نے پھر سے سرفراز کیا اور دوسرے درجے کا حاکم بن گیا. جب ہم اپنی آزادی کو بدی کا پردہ نہیں بناتے، خدا کے خادم بن جاتے ہیں، خدا کے بندے بن جاتے ہیں، تو پھر خدا سرفرازیاں لاتا ہے. روحانی آزادی میں ہی حقیقی سرفرازی ہے. روحانی آزادی میں ہی حقیقی برکت ہے. آج ہم باہر پروگرام میں ایک اسٹوڈنٹ نے تقریر کی اور اس میں ایک جملہ اس نے بولا. اس نے کہا غلامی ایک لعنت ہے. اور خداوند یسوع مسیح اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. حقیقت غلامی ایک لعنت ہے. پیدائش کی کتاب میں اگر آپ دیکھیں گے تو جب سزا ملی ہے، زمین تیرے سبب سے لعنت کی ہوئی، لعنتیں ملی ہیں، غلامی ملی ہے، لیکن یسوع کے وسیلے سے ہم اس لعنت سے نکل آتے ہیں، اس غلامی سے نکل آتے ہیں اور بڑے بڑے رتبے ہمیں مل جاتے ہیں. جو پطرس کہتا ہے تم شاہی کائنات کا فرقہ، برگزیدہ نسل ہو، مقدس قوم، خدا کی خاص امت ہو. اتنی تعریفیں سننے کے بعد کہیں ہمیں ہماری زندگی میں غرور نہ آ جائے، کہیں ہم اپنے آپ کو بالکل آزاد نہ سمجھنا شروع کر دیں. پھر پطرس کہتا ہے اپنی آزادی کو بدی کا پردہ نہ بنا. کبھی بھی آزادی جو ہے وہ ہمیں گناہ کی طرف لے کر جائے. اور یہی ایک زندہ کلیسیا کی خوبی ہے کہ زندہ کلیسیا یسوع میں آزاد ہے. زندہ کلیسیا خدا کا اپنے آپ کو بیٹا اور بیٹی سمجھتی ہے. زندہ کلیسیا اپنے آپ کو خدا کا غلام سمجھتی ہے، گناہ کا نہیں، ابلیس کا نہیں، خواہشوں کا نہیں، دنیا کا نہیں، بلکہ خدا کا غلام سمجھتی ہے.
खुदा का बंदा और बंदी बन जाते हैं, खुदा के खादम और खादमा बन जाते हैं। और खुदा का जो खादम और खादमा होता है वो जिंदगी में आज़ादी को पाता है, हकीकी आज़ादी को पाता है, हकीकी आज़ादी को वसूल करता है और बरकत पाता है, लानत से निकल आता है। इस बच्चे के जुमले ने मुझे एहसास दिया कि वाकई इंसान लानत में और गुनाह को खुदा कलाम मुक़द्दस में लानत के तौर पर दिया गया है, गुनाह की गुलामी को लानत के तौर पर दिया गया है। और हर एक इंसान जो गुनाह की गुलामी में है वो लानत में है, लेकिन जिंदा कलीसियाएं इस लानत से आज़ाद होती हैं। जिंदा कलीसियाएं यीशु के वसीले से गुनाह की लानत से आज़ाद हो जाती हैं और जिंदा कलीसियाएं अपनी इस आज़ादी को फिर बदी का पर्दा नहीं बनाती। हमें बतौर कलीसिया इस खूबी को अपने अंदर लेने की जरूरत है कि हम यीशु में आज़ाद जरूर हैं, लेकिन हम ऐसे आज़ाद नहीं है कि हम बदी को अपना पर्दा बना लें और बदी करते जाएं और गुनाहों में गिरते जाएं, क्योंकि हम कहेंगे हम आज़ाद हैं। हमें तो यीशु ने आज़ाद पैदा किया है, हमें यीशु ने आज़ाद बनाया, हम ऐसी जो मर्जी करिए। ऐसा नहीं है। कलीसिया खुदा के कलाम के ताबे है, कलीसिया खुदा के ताबे है, उसके बेटे यीशु के वसीले से वो आज़ाद है, लेकिन गुनाहों से आज़ाद है और खुदा की खादम और खादमा है। इसलिए खुदावंद में तौफीक बख्शे कि हम आज़ादी के हकीकी मतलब को समझ सकें और अपने आप को मसीह में आज़ाद समझें, लेकिन इस आज़ादी को बदी का पर्दा न बनाएं। कलीसिया को बदी से दूर रहने की ज़रूरत है, कलीसिया को अपने अंदर से बदियों को, खामियों को निकालने की ज़रूरत है। आइए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इसके साथ ही हम आज की कलाम की शुक्रगुजारी के साथ ही हम बीमारों के लिए दुआ भी करेंगे। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा हज़रत और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए, क्योंकि तूने अपने बेटे खुदाबंद यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया है। लेकिन खुदाबंद तेरा शुक्र हो कि तेरा कलाम हमारी रहनुमाई करता है ताकि हम इस आज़ादी को बदी का पर्दा न बनाएं। खुदाबंद तू हमारी मदद कर, हमें एक जिंदा कलीसिया बना और जिंदा कलीसिया की खूबियों में इस बात में भी गालिब आने की तौफीक दे कि हमारी ये आज़ादी बदी का पर्दा न बने, बल्कि हम बदी पर गालिब आए और रूहानी तौर पर, हकीकी तौर पर आज़ाद हो जाएं। खुदावंद हम इस वक्त बड़े ईमान के साथ तेरी हुजूरी में बीमारों के लिए शिफा मांगते हैं। यहाँ पर मौजूद हम में से हर एक को छू, जितने खुदावंद ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उन्हें भी छू दे। हमारी हर एक जिस्मानी कमजोरी और बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, हमारी हर एक तकलीफ यीशु के नाम से खत्म हो जाए। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हर एक तकलीफ, दर्द को हुक्म देते हैं। हमारे पास अपना कोई इख्तियार नहीं है, हमारे पास अपनी कोई कुव्वत नहीं है, हम इसका इकरार करते हैं, लेकिन अब आप तेरे बेटे यीशु का नाम सब नामों से आला है, उसके नाम में कुदरत और फतह है, इसलिए यीशु के नाम से फतह पाते हैं और यीशु के नाम से शिफा मांगते हैं। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, उन्होंने दरखास्त किया कलीसिया उनके लिए मिलकर दुआ करे, उन्हें तेरी हुजूरी में याद करते हैं। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन फौजिया के लिए, मिसेस जेरी आर्कर के लिए, जिदा से खुदावंद हम दुआ करते हैं मिसेस नजीज जियाई के लिए, मिसेस सरवर के लिए, जिदा से खुदावंद हम दुआ करते हैं भाई सफदर के लिए, बहन शहनाज के लिए, बेटी अलीबा के लिए, बेटी अदीला के लिए और सारे खानदान के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह से खुदावंद यूनुस साहब के लिए दुआ करते हैं, उनके घराने के लिए शिफा मांगते हैं। भाई अगस्तीन के लिए, इसी तरह से भाई आसफ रशीद के लिए, भाई परवेज यूसुफ के लिए, भाई नदीम जॉर्ज के लिए, भाई शहजाद के लिए शिफा मांगते हैं। इस तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं बेटे कुबैद के लिए, बेटी मारिया के लिए, जेरूशा के लिए, बेटी कोमल के लिए। इस तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं मिसेस नसीम सलीम के लिए और भी जितने लोग इस वक्त मुसीबत में हैं, परेशानी और बीमारी की हालत में हैं, यीशु के नाम में उनके लिए शिफा मांगते हैं। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े हैं तुम्हें छू दे, उन्हें बरकत है खुदावंद, उन्हें औलाद की नेमत मिले, तेरी कुदरत उन पर जाहिर हो, तू छू खुदावंद और मौजज़ा कर, तेरी मेरास उन्हें मिले और तेरी बरकत का तजुर्बा वो भी करें। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम खुदावंद की तारीफ में गीत नंबर 458 गाएंगे, 458, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है। गीत नंबर 458
458.
करते हैं। सारे ज़रा मुझे लग रहा था कुछ तो बड़े जोश से गा रहे थे, कुछ बड़े उदास गा रहे। ये गीत खुदा की एक फजल को बयान कर रहा है कि सारा जलाल यीशु के लिए, सारी कुदरत सारा जलाल हमारे खुदावंद के लिए जिस पर हम ईमान रखते हैं। इस गीत का आखिरी मिसरा हम गाएंगे, बादशाहों का तू बादशाह। सारे मिलकर जोश के साथ इसके लिए, खुशी के साथ। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम इकट्ठे मिलकर तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद हम तेरा घराना है, तेरे लोग हैं और तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बेटे यीशु मसीह में हमें एक रिश्ते में बांधा है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इस जगह के लिए जहां पर तूने हमें इकट्ठा होने का मौका दिया है। जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उनके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद हमने तेरी हम के गीत गाए हैं, तेरे कलाम को सुना और तुझसे मांगा है और तेरे नाम को जलाल दिया है, क्योंकि तू ही हमारा खुदावंद और हमारा बादशाह है। खुदावंद हमारी इस दुआ को, इस इबादत को तू कबूल कर और जितने लोग इस इबादत में शामिल हैं सभी को बरकत दे। यह हदिया जात जो तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटाए हैं, खुदावंद तुझे कबूल कर। तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे, सारी कलीसिया को खुदावंद को खुशहाली दे। मुआशी मसाइल यीशु के नाम से जाते रहे। खुदावंद तू अपने लोगों के इरादों, मंसूबों और ख्वाहिशों में बरकत पैदा कर। तेरा फजल तेरे लोगों के साथ और खुदावंद ये हफ्ता हम में से हर एक के लिए मुबारक ठहरे। खुदावंद तू हमारी हिफाजत कर, हमारी निगरानी कर, हमें बीमारियों से, कोरोना वायरस से और मुख्तलिफ वबाई अमराज से महफूज रख, हादसात से महफूज रख। हमारी कलीसिया का एक एक फर्द तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून की कुदरत में महफूज हो और खुदावंद हमें ये बख्श दे कि हम बतौर जिंदा कलीसिया तेरे बेटे यीशु की गवाही देने वाली कलीसिया बन सकें। कौमी सतह पर तेरे बेटे यीशु की मुनादी करने वाले, तेरे बेटे यीशु की बादशाही की वुसअत करने वाले बन सकें। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूरों में माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ रहे, आमीन।